જીનેશ્વરની વાણી સૌ સાથે. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમાપ્યાની જેણે તમારા ખવિતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ભવ્યેભ્યો ભજમાનેભ્યો યો દદાતિ નિજં પદં તસ્મૈ શ્રી વીરનાથાય નમઃ શ્રી ગૌતમાય ચ. મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં ભેત્તારં કર્મભુભૃતાં જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. સરસ્વતી નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણી. વિદ્યારંભં કરિષ્યામિ સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા. ઓમ શ્રી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવદ્ભ્યો નમઃ. શ્રી સદ્ગુરુદેવાય નમઃ. જય સદ્ગુરુ. જય સદ્ગુરુ. જય સદ્ગુરુ. तत्व चर्चा में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम में कारणभूत ऐसी 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं. उसमें कौन सी भावना चल रही है? शक्तितः तप. बहुत दिनों से 16 भावनाओं के नाम नहीं बोले. कौन बोलेगा? हाँ बोलो. દર્શન વિશુદ્ધિ, વિનય સંપન્નતા, વ્રત અને શીલમાં અનતિચાર, ચોથું અભિક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ, પાંચમું અભિક્ષણ સંવેગ, શક્તિતઃ ત્યાગ, શક્તિતઃ તપ, સાધુ સમાધિ, વૈયાવૃત્યકરણ, શ્રી હરિત ભક્તિ, શ્રી આચાર્ય ભક્તિ, શ્રી બહુશ્રુત ભક્તિ, શ્રી પ્રવચન ભક્તિ, પછી આવશ્યક અપરિહાણી, માર્ગ પ્રભાવના અને પ્રવચન વાત્સલ્ય. અતિ સુંદર, બહુ સરસ. કોણ કહે છે કે આ એજમાં યાદ નહીં થાય? ઘણાનો પહેલો એક્સક્યુઝ એવો હોય ને કે ભાઈ હવે ઉંમર થઈ છે, હવે નામ યાદ નથી રહેતા. એકદમ ક્રમપૂર્વક અને એકદમ સ્પષ્ટ નામ. સરસ, બહુ સરસ. 16 ભાવનાઓનું નામ. આ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાથી ધીમે 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 જ્ઞાનનો ક્ષોભક્ષમ થાય. ક્ષોભક્ષમ કોઈ એક ઉંમર આધારિત હોતો નથી.
જેનું જેટલું જેટલું જ્ઞાન એટલું એટલું સૌક્ષમ. આજે આપણે સાહેબજીનો સ્વાધ્યાય સાંભળ્યો 2008નો હતો. એ વખતે સાહેબજી લગભગ 78-77ની એજ હશે સાહેબજીની. છતાંય એ વખતે પણ સમયસારના કળશ, જે શ્લોક, જે વચ્ચે રેફરન્સીસ, બધું એકદમ મુખપાઠ સાહેબજીની. તો એજ બહુ મેટર નથી કરતી. એ સાથે સાથે જેટલો આપણે જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીએ, તત્વનો અભ્યાસ કરીએ, એટલું ધીમે 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 એક ક્ષયોક્ષમ કાં તો વધે કાં તો મેન્ટેન થાય. એટલે દરેક બાબતમાં એજનો એક્સક્યુઝ નહીં આપવું. બહાનું પોતાને નહીં, બીજાને તો આપવાનું જ નહીં, પોતાને પણ સાધનામાં કે મારી હવે ઉંમર થઈ ગઈ છે એવો બહાનો કાઢવો નહીં. કેમ કે બધું થઈ શકે, બધું પોસિબલ છે. સૌભાગ્યભાઈને સમ્યક દર્શન થયું. કેટલી ઉંમર હતી એ વખતે? 66. તો એ જ ક્યાંય બહુ મેટર કરતી. અંદરની મુક્ત થવાની ઈચ્છા કેટલી છે, મુમુક્ષુતા કેટલી છે, મુક્ત થવાની તીવ્ર ભાવના કેટલી છે, એ મેટર કરે છે. મોહ કેટલી હાનિ પામ્યો છે એ મેટર કરે છે. ચાલો, તો અંતરંગ તપ, અંતરંગ તપમાં છેલ્લું તપ ધ્યાન તપ. શક્તિ તપમાં અંતરંગ તપ, એમાં છેલ્લું તપ ધ્યાન તપ. ધ્યાન તપમાં આપણે આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનનો વિચાર કર્યો. ધર્મ ધ્યાનના 10 પ્રકાર, 10 પ્રકારમાં 9 પ્રકારનો વિચાર આપણે કરી ગયા. ચલો, 9 પ્રકારો કે નામ? નौ પ્રકારોના નામ કોને કોને યાદ છે? છેલ્લું નહીં, નવું ધ્યાન. છેલ્લાથી પહેલું બોલો તોય ચાલે. ક્રમથી મતલબ 9 પ્રકાર આવવા જોઈએ પૂરા. ચલો, પહેલો પ્રકાર આજ્ઞા વિશે ધર્મ ધ્યાન. બીજું અપાય વિશે ધર્મ ધ્યાન. ત્રીજું ઉપાય વિશે ધર્મ ધ્યાન. ચોથું વિપાક વિશે ધર્મ ધ્યાન. પાંચમું ના, સંસ્થાન હજુ બાકી છે. જીવ વિશે ધર્મ ધ્યાન, અજીવ વિશે ધર્મ ધ્યાન, વિરાગ વિશે ધર્મ ધ્યાન, ભવ વિશે ધર્મ ધ્યાન અને હેતુ વિશે ધર્મ ધ્યાન. આ 9 પ્રકારના ધર્મ ધ્યાનનો વિચાર કર્યો. હવે આજે છેલ્લું કયું છે? संस्थान विषय धर्म ध्यान. संस्थान का क्या अर्थ होता है? संस्थान का शाब्दिक अर्थ आकार. क्या अर्थ होता है? आकार, आकृति. आकृति. संस्थान का मतलब होता है, अपने 6 संस्थान बताए मनुष्य के, बताए ना, समचतुरस्र संस्थान वगैरह. तो वो क्या है, हमारी शरीर की आकृति कैसी होगी वो बताए, तो वो 6 संस्थान बताए. संस्थान का मतलब होता है आकृति, आकार. तो संस्थान विषय धर्म ध्यान में क्या किया जाता है? विषय का अर्थ विचार करना. विषय का अर्थ अपन पहले देख लिया था, विषय अर्थात विचार करना. तो संस्थान विषय क्या हुआ? आकार का विचार करना. आकार का जिसमें विचार किया जाता है वह धर्म ध्यान कौन सा कहलाता है? संस्थान विषय धर्म ध्यान. अब किसके आकार का विचार किया जाता है? तो पहला तो है लोक के आकार का, लोक स्वरूप का जिसमें चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है. लोक स्वरूप जो पुरुषाकार लोक है, ऐसा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ऐसा जो पुरुषाकार स्वरूप है, कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो जैसे पुरुषाकार बनता है, वह लोक का स्वरूप है. तो उस पुरुषाकार लोक का चिंतन करना, वो संस्थान विषय धर्म ध्यान. फिर दूसरा इसमें आकार पुरुषाकार आत्मा का चिंतन करना. उसमें पहले सकल परमात्मा अर्थात अरिहंत भगवान. अरिहंत भगवान वो भी पुरुषाकार आत्मा है. तो जब उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है, केवल ज्ञान होते ही कैसा हो जाता है? परम औदारिक शरीर. तो परम औदारिक शरीर से सहित
ऐसे पुरुषाकार अरिहंत भगवान का ध्यान करना, तो वो भी आकार का ध्यान करना हुआ। और फिर पुरुषाकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान, अंतिम शरीर से कुछ न्यून परंतु शरीर से रहित ऐसे सिद्ध परमेष्ठी। अब उनका आकार कैसा बताया? वास्तव में अब पुद्गल नहीं है, शारीरिक आकार कोई नहीं है, पर फिर भी भगवान ने क्या बताया कि किंचित जो अंतिम शरीर था, चरम शरीर, उससे किंचित न्यून, थोड़े कम ऐसे आकार में वो अवस्थित हैं, अरूपी हैं। क्योंकि आत्मा कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ऐसा अमूर्तिक है, अरूपी है। पर ऐसा पुरुषाकार आत्मा, उसके गुणों का चिंतन करना, सिद्ध भगवान का चिंतन करना अर्थात क्या? वो तो कुछ दिखता नहीं है उनका आकार, तो क्या चिंतन करना उसमें? सिद्ध भगवान के गुणों का चिंतन करना। और उपलक्ष्य से इन सब प्रकार के ध्यान में अंतिम में किसका चिंतन किया जाता है? अपने आत्मा का चिंतन किया जाता है। तो ये संस्थान विचय धर्म ध्यान का स्वरूप है। अब संस्थान विचय धर्म ध्यान में मुख्य रूप से 5 प्रकार बताए हैं। कितने? 5 प्रकार। पहला प्रकार है पदस्थ, पदस्थ ध्यान। कौन सा प्रकार? पदस्थ। दूसरा प्रकार है पिंडस्थ। कौन सा? तीसरा प्रकार रूपस्थ। 4 प्रकार बताए, फिर पिंड संस्थान विषय में 4 प्रकार बताए, 5 नहीं, फिर पिंडस्थ में 5 आएंगे। पहला पदस्थ, दूसरा पिंडस्थ, तीसरा रूपस्थ और चौथा रूपातीत। 4 प्रकार हुए। पहला कौन सा? पदस्थ संस्थान विचय धर्म ध्यान। दूसरा पिंडस्थ संस्थान विचय धर्म ध्यान। तीसरा रूपस्थ संस्थान विचय धर्म ध्यान और चौथा रूपातीत संस्थान विचय धर्म ध्यान। बहुत सारे भेद प्रभेद, बहुत नाम याद नहीं रहे तो स्वरूप समझना है। करना क्या है हमको? ये सब ध्यान के प्रकार समझ के हमको अप्लाई करने। अप्लाई थोड़े थोड़े भाव समझ में आएंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सारे कठिन कठिन नाम याद नहीं रहते हैं। अभी सुदाबा ने एकदम क्रम से 16 नाम बोल के बताए, तो सबके लिए उदाहरण है कि इस एज में भी ये सब याद हो सकता है, हम चाहें तो याद रख सकते हैं। चलो, अब इसमें पहला है पदस्थ संस्थान विचय धर्म ध्यान। तो जैसे नाम में क्या है? पदस्थ। पद में जो स्थित होकर ध्यान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पदस्थ। अब पद क्या होते हैं? 5 परमेष्ठी है, वो पद हैं। तो पदस्थ धर्म ध्यान में मुख्य रूप से पद, जो मंत्रों में जो पद आते हैं उनका ध्यान किया जाता है। जो भी मंत्र, जितने भी अपने आगम में मंत्र हैं, वो सब मंत्र पद से मिलकर बने हुए, किसी न किसी पद से, बीजाक्षर से मिलके बने हुए। हर मंत्र में कोई न कोई बीजाक्षर होता है, कोई न कोई पद होता है। तो उन पद का ध्यान करना, उसको कहते हैं पदस्थ धर्म ध्यान। बहुत सारे प्रकार हैं इसमें द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्राचार्य ने एक गाथा दी है। 35 16 56 चदुदुग मेघम जवह जायेह परमेट्ठि वाचयाणम अन्नम च गुरुवसेण। इसका अर्थ क्या हुआ? 35 मतलब 35, 35, 16 का मतलब 16, 16, 56, 6 और 5, 6 અને 5, चदुदुगम 4 और 2, एगम એટલે 1, 35, 35, 16, 6, 5, 4, 2 અને 1 આટલા આ પદ વાંચી, આટલા પદના આ મંત્ર છે, આટલા અક્ષરના મંત્ર છે, એનું ધ્યાન કરી શકાય। अथवा अन्नम च गुरु ए सेण, और भी गुरु के उपदेश के अनुसार, जैसे जैसे गुरु बताएं ऐसे बहुत सारे दूसरे भी मंत्र होते हैं, उनका पदवाची मंत्रों का ध्यान करना। अब 35 अक्षर का कौन सा मंत्र होता है? 35 नो नमोकार। ऐसो पंच नमो यारो नहीं लेवानो एमां,
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। आप 35 अक्षर थाय छे। तो इसका ध्यान करना। अब इसका ध्यान करने के भी बहुत सारे प्रकार हैं कि नाभि में, हृदय में, मुख में, ललाट पर, सिर में अलग अलग प्रकार के कमल की रचना करो। फिर एक एक पत्र पर एक एक पद लिखो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यन, और फिर बीच में ओम, करणी पर ओम लिखो और फिर उसका ध्यान करो। या फिर अलग अलग स्थान पे इन अक्षरों को स्थापित करो कि जैसे ललाट सबसे ऊपर यहाँ नमो अरिहंताणम, फिर यहाँ नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, फिर मणिपुर चक्र में उवज्जायणम, फिर मूलाधार चक्र में नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसे उन वहाँ एक एक जगह पे शरीर में कहाँ कहाँ ध्यान कर सकते हैं, शरीर में कौन कौन से प्रदेश पे एकाग्र कर सकते हैं। कृपाणुदेव ने वचनामृत में 2-3 जगह लिखा है। एक तो जूठा भाई को पत्र लिखा हुआ उसमें लिखा है, एक उपदेश छाया में अथवा व्याख्यान सार में, कि अलग अलग जगह पे आप अगर तत्व विचार में सीधा सीधा मन नहीं लगता है तो एकाग्रता करने के लिए ये सब है। कभी हमारी योग्यता नहीं होती है अथवा बहुत असहता होती है, उस समय एकदम से तत्व विचार में बिना किसी आलंबन के हम प्रवृत्त हो जाएं तो हमारा मन एकाग्र होता नहीं है, लगता नहीं है। इसलिए ये सब बताया कि कहाँ कहाँ आप एकाग्र कर सकते हो। तो ये पत्र नंबर મને યાદ નથી। જૂઠાભાઈને એક પત્ર લખેલો છે, એમને બહુ અસાતા હતી તો એકદમથી ધ્યાન નહોતું થતું, તો એમને અમુક અમુક જગ્યા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું કીધું। પછી ઉપદેશ છાયામાં કે વ્યાખ્યાન સારમાં છે, એક્ઝેક્ટલી મને યાદ નથી, જોઈને કહીશ। તો 58 પત્ર, હા હા ના ઘણા બધા છે, એક ध्यानનો છે, બરાબર છે। तो कौन कौन से स्थान हैं शरीर में जहाँ पे एकाग्रता के लिए हम उन स्थानों का अवलंबन कर सकते हैं। तो कहा नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले, नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासिकाग्रे ललाटे। नेत्र द्वंद्वे એટલે दोनों आँख, द्वंद्व એટલે दो, दोनों आँख, श्रवण युगले दोनों कान पे भी एकाग्र कर सकते। ये शायद हमने ना सुना हो क्योंकि बहुत अपने आप एक तत्व विचार वाला ही ध्यान प्रचलित है, पर ध्यान शास्त्र, तत्वानुशासन, ज्ञानार्णव, द्रव्य संग्रह आदि बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें अलग अलग जीवों की योग्यता देखते हुए आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के ध्यान निरूपित किए हैं। सबका एक प्रकार से ध्यान करने की योग्यता सबकी होती, सब जीवों की पात्रता अलग अलग होती है। समय सार की गाथाओं से सबका ध्यान लग जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी को मंत्र जाप से लगता है, किसी को अलग अलग। तो आचार्यों ने सबके लिए ये इतने सारे, हमने कल 9 प्रकार देखे ध्यान के, आज 10वां प्रकार, और इसमें भी ये 4 और उसमें भी 5 और आएंगे। तो ये सब अलग अलग जीवों की पात्रता देखते हुए आचार्यों ने निरूपित किए हैं कि किसको क्या सूट होता है, किसकी कैसी योग्यता, उस हिसाब से उसको ध्यान करना चाहिए। तो नेत्र द्वंद्वे दोनों आँखों पर, श्रवण युगले दोनों कानों पर, नासिकाग्रे ज़्यादातर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं, आचार्यों की प्रतिमाओं, उनका ध्यान कहाँ पर केंद्रित होता है? अर्धोन्मिलित नेत्र होते हैं और नासिकाग्रे नाक के अग्रभाग में, ललाटे मस्तक के ऊपर एकाग्र कर सकते हो। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासिकाग्रे ललाटे। फिर क्या कहा? वक्त्रे, वक्त्रे अर्थात मुखमंडल, उस पर एकाग्र करते हो। वक्त्रे नाभो, नाभो मतलब मणिपुर चक्र, चक्र आते हैं ना, तो उसमें नाभि में भी आप ध्यान को एकाग्र कर सकते हो। वो ऊर्जा का केंद्र है। जितने भी चक्र ऐसे ग्रंथांतरों में, जनेतर ग्रंथों में बहुत आते हैं चक्रों का वर्णन योग मार्ग में, सर्वथा मिथ्या नहीं है। अपने यहाँ भी उनका वर्णन, पर जो चक्र के नाम वो दिए हैं वो नाम नहीं है यहाँ पे, पर उन स्थानों पे उन बीजाक्षरों से सहित ध्यान करने का वर्णन अपने शास्त्रों में भी आता है। तो वक्त्रे नाभो, शिरसी हृदय, शिरसी अर्थात यहाँ, वहाँ कौन सा चक्र बताते हैं? सहस्रार चक्र। तो यहाँ सिर का ऊपर का भाग शिरसी, वक्त्रे नाभो शिरसी हृदय, हृदय कमल में।
यहाँ कौन सा चक्र बताते हैं? अनाहत चक्र। मणिपुर चक्र नाभि में। फिर यहाँ कंठ में, यहाँ कौन सा चक्र बताते हैं? विशुद्धि चक्र। तो ये सब अलग अलग भाग। वक्त्रे नाभो शिरसि हृदये। फिर तालुनी, तालु या मुख में ऊपर का भाग, ऐसे जीभ छुआते हैं ना ऊपर, तालु, तो वो तालुनी। और उसके बाद कहा भ्रू युगान्ते। भ्रू युगान्ते अर्थात दोनों भ्रकुटी के मध्य में। तीसरा नेत्र जहाँ कहते हैं आज्ञा चक्र। ये सब चक्र हो गए। आचार्यों ने ये इस श्लोक की 2 पंक्तियों में सारे चक्रों का वर्णन कर दिया। 10 स्थान बता दिए। वहाँ तो 7 ही स्थान बताते, 7 या 8, इन्होंने 10 बता दिए कि हमारे तो 2 चक्र और भी हैं, ऐसा कह दिया महाराज ने। ज्ञानार्णव में ये श्लोक आता है। फिर यहाँ पे साहेब जी ने तो ये सिद्ध करके बताया। साहेब जी ने बहुत युवावस्था से अभ्यास किया। 5-5 घंटे, 4-4 घंटे एक आसन पर साहेब जी पद्मासन में ध्यान कर पाते थे। उसका फल क्या हुआ कि जब इतनी उम्र हुई, लगभग पैरालिसिस से 1 साल पहले, जब तक उनको पैरों में जलन की समस्या स्टार्ट नहीं हुई, तब तक वो 4 घंटे पद्मासन में एक आसन पे ध्यान कर सकते थे। और ऐसे चिंतन नहीं, ध्यान लगता था। ये वर्षों तक अभ्यास का परिणाम है। पूज्य श्री गोकुल भाई बताते हैं कि उन्होंने 5-5, 6-6 घंटे एक साथ एक आसन पे ध्यान करते हुए देखा है, बहुत बार। 5-5, कई साधकों की तो दिन भर की साधना का समय भी नहीं है, 5 घंटे या 6 घंटे। पूरे दिन भर की साधना का टाइम भी नहीं है, भक्ति स्वाध्याय सब मिला के भी 5-6 घंटे नहीं है, और वो एक आसन पे एक साथ इतना कर लेते। तो व्याधि के समय भी उनको जब एकदम धवल अंतस्थल का साक्षात्कार हुआ, तो वो भी 8 बजे से लगा के 2 बजे तक की समाधि में, जो हम अभी अगले महीने मनाने वाले 14 फरवरी। तो वो अभ्यास था, इसलिए असाधा के समय में भी छूटता नहीं है वो। तो अभ्यास, जब हम लोग कितना बैठ पाते हैं? 1 घंटा, बिना कुर्सी के नीचे। कुर्सी वाले भी 1 घंटा नहीं बैठ पाते। पूरे दिन भर का मिला के भी हम 2-3 घंटे ध्यान नहीं कर पाते। तो ये सब ऐसे ज्ञानी हमारे आदर्श, तो उन्होंने जी के बताया है, खुद करके बताया कि ऐसा करो, इतना कहा नहीं है, वो करके बताया। दशा तो बनती है विचार से, तत्व चिंतन से, जानकारी इकट्ठी करने से आत्मदशा नहीं बनती। बहुत सत्संग सुनने, स्वाध्याय सुनने से आत्मदशा, उससे क्या होता है, अपने पास माहिती आ जाती है, जानकारी आ जाती है। फिर उसका चिंतन, जो सत्संग में सुना, स्वाध्याय में सुना, उसका चिंतन, उसका विचार, उसका घोलन, उसका मनन, फिर वो आचरण में आता है। पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ आता है। चरण अर्थात आचरण में आता है। तो बार बार उसका विचार करते हैं, तब जाके, और विचार का नाम ही ध्यान है। कल भी हमने बात की थी कि आत्मा का स्वरूप बता के क्या कहा, कर विचार तो पाम। बीजू कहिए केटलू, बहुत कह दिया, पूरा आत्मा का स्वरूप कितना बताया, अब कितना कहें। अब स्वयं विचार करो और प्राप्त करो, उसके अलावा कोई उपाय दूसरा नहीं है। क्योंकि जे पदश्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मां, कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो, ते स्वरूप ने अन्य वाणी ते शू कहें, अनुभव गोचर मात्र રહ્યું તે। अनुभव गोचर तो विचार के द्वारा ही अनुभव में आएगा, इसलिए सारे ये विचार करने के ध्यान है। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम? शरीर के इतने, हाँ माइक में, જૂના સ્વાધ્યાયોમાં અમે સાહેબજીને 3-3 કલાક ધ્યાન કરતા જોયા છે। ઘણા મુમુક્ષુઓ જોયા છે। तो हम शरीर का विचार कर रहे थे कि इस ध्यान में, पदस्थ ध्यान में, कहाँ कहाँ पे उन 5 परमेष्ठी के पदों को आप चिंतन कर सकते हैं, ये सब एकाग्रता करने के लिए। फिर उनका वहाँ पे स्थापित किया, तो वो स्थापित करने में आपके सामायिक के 15-20 मिनट निकल जाएंगे। फिर उन पदों का चिंतन करना है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करना है।
नमो सिद्धाणम सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिंतन करना है। नमो आर्याणम में आचार्य भगवान के स्वरूप का चिंतन करना है। नमो उज्जैनम में उपाध्याय भगवान के स्वरूप का चिंतन, और फिर साधु परमेष्ठी के स्वरूप का, ये सब चिंतन। अब इसमें आपको कोई स्वाध्याय का सत्संग का कुछ भी याद नहीं है तो भी चलेगा, इनका स्वरूप तो हम सामान्य स्वरूप तो जानते ही हैं। कोई भी कमल पत्रों का चिंतन करो, अथवा ये शरीर में इतने स्थान किए वहाँ पे एक एक पद को स्थापित करो। तो ये 35 अक्षर, पहला क्या था गाथा में? पण 30, 16, दूसरा 16 मतलब 16, 16 में कौन से आते हैं? नमो अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यः, और उसके अलावा अरिहंत सिद्ध आर्य उवाज्याय साधु सर्व साधु, ये भी 16 हो जाते हैं। तो इनका ध्यान करो, एक एक पद का, एक एक पद का। फिर 35, 16, 56, 6 में क्या आएगा? अरिहंत सिद्ध। क्या आएगा? अरिहंत सिद्ध। अन्य भी बन सकता है, परमेष्ठी के नाम से और भी बन सकता है, पर ये तो एक एक आचार्यों ने सैंपल दिया कि जो संख्या बताई उसमें अरिहंत सिद्ध। 5वां असिया उषा, 56, 5 पे क्या होता है? असिया उषा, उसमें पंच परमेष्ठी आ जाते हैं। अथवा नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेष्ठी का नमो सिद्धाणम आता है। उसके बाद 4 में अरिहंत, अरिहंत शब्द 4 में आ जाता है। फिर 2 सिद्ध, और फिर 1 ओम। ओम अथवा अ, इतना भी चिंतन करो, अ उतना भी चलता है, वो भी दिया है कि अ भी बीजाक्षर है। और ओम में तो पांचों परमेष्ठी आ ही जाते हैं। कैसे आते हैं? अरिहंत का अ, और सिद्ध, सिद्ध का अशरीरी सिद्ध का अ ले सकते हो, अ प्लस अ इक्वल्स टू आ में आचार्य भी आ जाते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य तीनों आ गए। फिर उवज्जाय का उ, आ प्लस उ गुण संधि होके क्या बनता है? अभी पहले दीर्घ संधि हुई, आ वत्ता उ एनो गुण संधि थईने शुं बने? ओ, ने पछी छेल्ले मुनि, मुनिનું म, एम ओम बनी जाए छे। एम आदिनाथ भगवान थी महावीर भगवान सुधी अ अने म, आ अने म, एम ओम, એટલે ઓમમાં 24 तीर्थंकर આવી જાય, ઓમમાં पंच परमेष्ठी આવી જાય, એટલે ઓમને प्रणव मंत्र। और सर्व दर्शनों में मान्य, सर्वमान्य ओम है। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता, ग्रंथांतरों में वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का वाचक माना जाता है, वेदों का वाचक माना जाता है। अन्य हर स्थान पे अपने अपने हिसाब से ओम पूज्य, तो ओम का भी ध्यान कर सकते हैं। जो शरीर में इतने स्थान बताए वहाँ कहीं भी ललाट के मध्यम में ओम को स्थापित करो, हृदय में करो, नाभि में करो, हर जगह। और अलग अलग हर जगह के अलग अलग बीजाक्षर मंत्र भी हैं, बहुत विस्तार है इसका। जिसको बहुत अधिक जिज्ञासा रुचि हो वो ज्ञानार्णव अथवा तत्वानुशासन, इन 2 शास्त्रों का अभ्यास कर सकता है। नागसेन सूरी द्वारा रचित है आचार्य नागसेन स्वामी का तत्वानुशासन और ज्ञानार्णव। द्रव्य संग्रह में भी पीछे की गाथाओं में इसका ध्यान का वर्णन किया गया है, तो वहाँ से अधिक जानकारी हम ले सकते हैं। चलो, तो ये हो गया पदस्थ ध्यान। फिर दूसरा पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान, तो यहाँ पिंड, पिंड का अर्थ आत्मा, अरिहंत का आत्मा, सिद्ध का आत्मा, अपना आत्मा। तो अलग अलग उस प्रकार से उस पिंड का ध्यान करना। अब पिंडस्थ ध्यान में 5 प्रकार की धारणा बताई, 5 प्रकार की धारणा बताई हैं। तो वो 5 प्रकार की धारणाएं कौन सी हैं? पहली धारणा पार्थिवी धारणा। कौन सी धारणा? पार्थिवी धारणा। दूसरी धारणा आग्नेय धारणा। कौन सी? आग्नेय धारणा। तीसरी धारणा श्वसना धारणा, अथवा उसको मारुति धारणा भी कहते हैं, श्वसना अथवा मारुति। चौथी वारुणी धारणा। कौन सी? वारुणी। और 5वीं तत्ववती धारणा। कौन सी धारणा? तत्व।
नाम हो सकता है कठिन कठिन लगे, पर जैसे नाम है वैसे ही अर्थ है उसका। इन पांचों धारणाओं का एक साथ ध्यान किया जाता है, एक साथ अर्थात एक बार में ध्यान करने बैठे और क्रम क्रम से ध्यान। कभी इसको प्रैक्टिकल करके भी अपन यथावसर एक ध्यान का सेशन रख के उसमें बता सकते हैं। तो पहले पार्थिवी धारणा में क्या होता है कि जो ध्यान करने वाला जीव है, योगी साधक, वो एक चिंतन, अब इसमें थोड़ी कल्पना करनी है कि इस जम्बू लोक, ये मध्य लोक के समान एक क्षीर समुद्र का चिंतन करना है। क्षीर समुद्र अर्थात दूध का, दूध जैसा पानी, एकदम सफ़ेद धवल पानी। तो इस तिर्यक लोक, मध्य लोक के समान उतने बड़े समुद्र का चिंतन करना है। ये ध्यान के समय करना, आंखें बंद करके आसन सिद्धि आसन लगा के उस समय चिंतन करना है। जो नीचे नहीं बैठ सकते तो जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ बैठ के चिंतन कर सकते। तो मध्य लोक के बराबर क्षीर समुद्र का चिंतन करना है। फिर उस क्षीर समुद्र के बीच में 1000 पंखुड़ियों वाले कमल का चिंतन करना है। सहस्त्रदल कमल, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल, और उसके मध्य में सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण जैसे रंग वाली, पीले रंग वाली ऐसी मध्य में, कमल के मध्य में कर्णिका होती है ना, बीच में डंडी, कमल के मुख्य में बीच में डांडी होती है ना, डंडी, तो उस कर्णिका को मेरु पर्वत के समान चिंतन करना है, स्वर्ण जैसी आभा वाली। और उसके ऊपर एक बड़े सफ़ेद सिंहासन का चिंतन करना है। सुमेरु के ऊपर, वो कर्णिका के ऊपर बहुत बड़ा सिंहासन है और उसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ऐसा चिंतन करना है। जो साधक ध्यान कर रहा है उसको ऐसा चिंतन करना है कि अब क्षीर समुद्र, सहस्त्रदल कमल, फिर मेरु पर्वत के समान कणिका, उसके ऊपर बड़ा सिंहासन और उसके ऊपर मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, ऐसा चिंतन करना है। ये 5-10 मिनट तो इसमें ही निकल जाएंगे, सारा उस अच्छे से चिंतन करने। फिर अपने आप को उसके मध्य में विराजित करना है। इतना हुआ ये पार्थिवी धारणा। इसको क्या कहते हैं? नाम कठिन लगता है पर सरल है वर्णन। फिर इसके बाद आग्नेयी धारणा, अब जैसा नाम है वैसा ही इसमें चिंतन है। फिर जो पार्थिवी धारणा में अपने आप को सिंहासन के ऊपर विराजित किया, अब वहीं पे ऐसा चिंतन करना है कि मेरे नाभि में 16 पंखुड़ियों वाला कमल, नाभि में मणिपुर चक्र में 16 पंखुड़ियों वाले कमल की उसमें कल्पना करनी है, चिंतन करना है। और 16 पंखुड़ियों में एक एक पंखुड़ी पे 16 स्वर लिखने, इमेजिनेशन में। 16 स्वर पता है ना कौन कौन से? वोवेल्स, जो संस्कृत में गुजराती में आते हैं, अ, आ, ई, उ, रु, रू, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ये 16। तो एक एक पत्र पर ये 16 लिख देने। और फिर जो बीच में उस पत्र पे जो बीच में कर्णिका डंडी होती है, उसके ऊपर ह के ऊपर रेफ और उसके बीच में बिंदु, अरहम शब्द पता ना, अरहम, अरहम का अ निकाल देना, फिर क्या बचा? रम। ह के ऊपर रेफ और बिंदी, तो अरहम में जो रम होता है उसको वहां पे चिंतन करना। किस पे? कर्णिका के ऊपर, वो डंडी के ऊपर बीच में। चारों तरफ 16 पत्ते हैं, उन पत्तों पे क्या लिखा है हमने? स्वर लिखे, और बीच में रम, अरहम का रम। अब ऐसा चिंतन करना है कि हृदय अपना, यहाँ पे हृदय में, हृदय जहाँ स्थित है वहां पे 8 पंखुड़ियों वाला कमल उल्टा है। 8 पंखुड़ियों वाला कमल उल्टा है। उसकी एक एक पंखुड़ी पे 8 कर्म लिखने, एक एक पंखुड़ी पे 8 एक एक कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, नाम गोत्र, आयु, नाम गोत्र और वेदनीय, ऐसे 8 एक एक पत्ते पे। अब जो नीचे हमने नाभि पे जो कमल चिंतन किया था, उसके जो रम का जो रेफ है, ऊपर रेफ, ह के ऊपर जो रेफ है, वहां से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, ऐसा चिंतन। कौन सी धारणा का चिंतन कर रहे हैं हम? आग्नेयी धारणा। तो धीमे धीमे उस रेप से धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। अब धुएं से वहां पे वो ऐसे अग्नि के वो स्फुलिंग निकलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? तणखा। हाँ, तणखा निकले છે એમાંથી, પછી તણખામાંથી જ્વાલા બની જાય છે, એની અગ્નિની જ્વાલા બની જાય।
वो स्फुलिंग धुआं, फिर उसमें स्फुलिंग निकल रहे हैं और फिर एक ज्वाला बन गई, शिखा बन गई, और वो शिखा बढ़ती 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 कहाँ तक पहुंची है? हृदय तक। अनाहत चक्र में जो हमने उल्टा कमल रखा है ना, वहां, और वो अग्नि बढ़ रही है, धीमे 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 बढ़ रही है। वो ऐसा अंदर चिंतन करना है अपने को ध्यान में। वो बढ़ते बढ़ते वो जो 8 पत्ते हैं वो क्या है? 8 कर्म, एक एक करके उसको जला रही है। वो अग्नि क्या कर रही है? एक एक करके उसको जला रही है। धीमे धीमे उसको जलाते जलाते वो अग्नि पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती। हमारे ये तो द्रव्य कर्मों को जलाया, 8 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म ये बचा ना, तो अभी इसको जला रही, शरीर को जला रही। और शरीर को जलाते जलाते कैसा चिंतन करना है कि यहाँ से निकली ऐसे क्रॉस में, नाभि से ऐसे गई हृदय में, ऐसे एक लाइन हुई, फिर ऐसे और ऐसे एक ट्रायंगल बनाना है अपने शरीर के बाहर। शरीर के बाहर एक ट्रायंगल बनाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब उस पूरे ट्रायंगल में, वो पूरी त्रिभुज में अग्नि जल रही है। ट्रायंगल की एक एक लाइन पे एक स्वस्तिक बनाना है कि वो स्वस्तिक भी उस अग्नि में, उस ज्वाला में, वो स्वस्तिक के साथ, स्वस्तिक के समान अग्नि ज्वाला प्रकट हो रही है, ऐसा। फिर उसमें बीजाक्षर वगैरह की भी रचना है, अपन उसका बहुत विस्तार में नहीं जाते। मुख्य इसमें होता क्या है वो समझना। और पूरे शरीर को धीमे धीमे और 8 कर्मों को वो अग्नि जलाकर राख कर देती है। क्या करती है? इतना चिंतन आग्नेय धारणा में करना है। पहले अपने आप को समुद्र के बीच में कमल पे बिठाया, आसन पे, फिर नाभि में वो कमल का चिंतन किया, 16 स्वर बनाए, फिर रम का चिंतन किया, फिर रेप से आग जलाई, फिर वो आग 8 कर्मों को, उस कमल को और शरीर को जलाती है और जलाकर पूरी राख कर देती है, ऐसा। फिर जलाने को कुछ बचता नहीं है तो धीमे धीमे वो अग्नि शांत हो जाती है। तो ये चिंतन हुआ किसका? आग्नेय धारणा का। तीसरी धारणा है मारुति धारणा या श्वसना धारणा। मारुत का अर्थ क्या होता है? पवन। तो अब अग्नि चिंतन की, अब यहाँ पे पवन का चिंतन करना है। ऐसा योगी जो ये चिंतन करना है कि अब मेरा शरीर जल गया है, 8 कर्म जल गए हैं, तो वो ऐसा चिंतन करे कि आकाश में बहुत बड़ा तूफान, एक वायुमंडल बहुत बड़ी वायु से वेष्टित हो गया है। कैसा तूफान? वो वायु कैसी है? કેવો છે પવન? સુમેરુને પણ કંપિત કરી નાખે એવો પવન છે। उतना तीव्र वायुमंडल, ऐसे तीव्र वायु का चिंतन करना है। और वो धीमे 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 वो वायुमंडल बढ़ता 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 कहाँ आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। और मेरी तरफ आ रहा है तो जो ये अग्नि से राख बनी है उसको, सारी जो भस्म थी उसको वो उड़ा लेता है, ऐसा चिंतन करना। वो क्या है? कौन सी धारणा? मारुति धारणा। इसका एक नाम और है श्वसना धारणा। श्वसना, वो भी वायु, उसका अर्थ भी वायु होता है, श्वसना धारणा। अब इसके बाद क्या धारणा है? वारुणी। वारुण का अर्थ क्या होता है? पानी। अब क्या चिंतन करना है कि बस ये वायुमंडल ने जो राख भस्म बनी थी उसको उड़ा दिया। अब आकाश में अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र की आकृति में बहुत बड़े बड़े बादल, पहले तो बहुत बड़े बड़े बादलों का चिंतन करना कि एकदम पूरा अंधेरा हो गया है, इतने बादल आ गए, इतने बादल आ गए कि अभी धोंधमार वरसाद થવાનો છે એવું વિચારવાનું, मूसलाधार बारिश होने वाली। और फिर हम जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर अर्धचंद्र में ऐसे बादल का निर्माण हुआ, वो हम पे कैसी तीव्र मेघ वर्षा कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? हम पे। और उस वर्षा में क्या हुआ? जितना कलमश था आग के कारण, वो धुआं राख तो उड़ गई। अब जो जो कलमश था वो एकदम क्या हो गया? धुल गया। धुलने से मैं क्या हो गया हूं? एकदम उज्जवल, एकदम धवल हो गया हूं। जैसा आत्मा का स्वरूप है धवल, क्योंकि 8 कर्म नष्ट हो गए, शरीर भी नष्ट हो गया, तो क्या बचा? अब केवल धवल उज्जवल आत्मा बचा। इतना चिंतन करना, वो क्या है? वारुणी धारणा। और अंतिम धारणा पिंडस्थ ध्यान की क्या है? तत्ववती धारणा। तत्ववती धारणा। अब तत्ववती धारणा में बस जो बचा है उस आत्मा के स्वरूप का चिंतन सिद्ध परमेष्ठी के आधार से कर सकते हैं, और
अरहंत परमेष्ठी के आधार से कर सकते हैं कि जिनका आत्मा शुद्ध हुआ है। ऐसे शुद्धात्मा का चिंतन करना, वह क्या है? तत्ववती धारणा। और वैसा चिंतन करते 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 अपने आप में योगीराज लीन हो जाते हैं और श्रेणी चढ़ जाते हैं। इस प्रकार के ध्यान से संस्थान विषय धर्म ध्यान ज्यादातर योगियों के श्रेणी चढ़ने का कारण आगम में बताया। संस्थान विषय धर्म ध्यान को श्रेणी के सन्मुख हुए ज्यादातर मुनि साधु इस ध्यान के द्वारा श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसा आगम में उल्लेख। जरूरी नहीं है कि इसी ध्यान के द्वारा चढ़े, पर अधिकांश योगी इस प्रकार के, क्योंकि वहाँ ध्यान स्वाध्याय के अलावा करने के लिए योगी के पास कुछ नहीं है। जो उस ऐसे शुद्धोपयोग में स्थित साधु हैं वो यही प्रयोग करते हैं, सारे अलग अलग प्रयोगों के द्वारा ध्यान करते हैं, तत्व विचार भी करते हैं। उनको पूर्व के पूर्व अंगों का ज्ञान होता है। हमको तो अंश के अंश का भी ज्ञान नहीं है, एक दो शास्त्रों का भी पूरा ज्ञान नहीं है, एक शास्त्र का भी अद्योपांत पूरा ज्ञान नहीं, और उनको तो अंगों का ज्ञान होता है। फिर भी वो इस प्रकार के ध्यान का निरूपण किया, मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होकर आत्मा में लीन होता है। फिर ये होगी पिंडस्थ, दो हो गए पदस्थ और पिंडस्थ। तीसरा रूपस्थ। रूपस्थ ध्यान में रूप अर्थात किसके रूप का चिंतन किया जाता है? समव शरण में विराजित परम औदारिक स्फटिक मणि के समान एकदम शुद्ध उज्ज्वल अरहंत भगवान का ध्यान किया जाता है। पर कहाँ पे विराजित? समव शरण में, उसमें पूरे समव शरण का ध्यान हो जाता है। आज की पूजा में समव शरण का जयमाला में वर्णन था पूरा। अच्छा, अजितनाथ भगवान की जयमाला में समव शरण का संक्षिप्त से पूरी जयमाला में वर्णन था कि पूरे अंतिम तक उन्होंने समव शरण का वर्णन किया जयमाला में। तो समव शरण का उसमें चिंतन करना कि समव शरण में 4 कोट होते हैं, समव शरण में 8 भूमियाँ होती हैं। 8 भूमियों में लास्ट भूमि में पहले तो आगे सब नृत्यशालाएँ, उसमें भवनवासी देवियाँ, कल्पवासी देवियाँ, ज्योतिषी देवियाँ सब नृत्य करती हैं। बहुत कुछ देखने योग्य दर्शनीय जगह होती है उसमें। फिर अष्टम भूमि में 12 कोठे होते हैं। 12 कोठे में कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं 12 कोठों में? 12 कोठे होते हैं ना समव शरण में, भगवान के चारों तरफ। सबसे में गणधर और अन्य सभी मुनिराज पहले कोठे में वो होते हैं क्रम से। दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियाँ कौन होती हैं? अभी कौन कौन जाके आया सोनगढ़ में? वहाँ सब रचना हुई होगी ना अभी पंचकल्याणक में, तो देखा होगा ये सब, क्या नहीं देखा? कि अन्य जीवों की तरफ बाहर समव शरण के आकर्षण में सब लुब्ध तो नहीं हो गए दूसरा देखने में? समव शरण में ऐसा ही होता है। नहीं, प्रैक्टिकल है। समव शरण में भव्य अभव्य दोनों जीव जाते हैं, बहुत सारे जीव जाते हैं। पर भव्य जीव तो 8वीं पृथ्वी तक जाता है, अभव्य जीव तो उसके पहले इतना कुछ होता है कि उस चकाचौंध में मोहित हो जाता है। ऐसे ही हम किसी पंचकल्याणक में गए और वहाँ मुख्य था वो तो छोड़ दिया और बाहर फंक्शन का आनंद लेके आ जाते। यही ऐसा ही होता है वहाँ पे। अभव्य जीव तो जो 8वीं भूमि का जो कोट होता है, चौथा भव्य कूट, उसको देख के अंधे हो जाते हैं, उसके आगे जा ही नहीं सकते। ऐसा वर्णन आता है यति वृषभाचार्य ने कि वो जो कोट होता है अभव्य जीव, द्रव्य सम्यक दृष्टि जीव, मतलब उसमें द्रव्य श्रद्धा नहीं समझना। देवशास्त्र गुरु को सामान्य जिसका श्रद्धा है, अंतरंग में उसकी प्रकृतियों का क्षयोक्षम हुआ है ना हुआ है वो मुख्य नहीं है, पर सामान्य से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं, ऐसा व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव भी जा सकता है उस भव्य कूट से आगे। पर अभव्य जीव को तो ये भी नहीं होता है, इसलिए वो भव्य कूट होता है, उसके आगे उनकी दृष्टि चकाचौंध हो जाती है। अगर वो उसके सामने देखे और जाने का प्रयत्न करे तो वो अंधे हो जाते हैं। इसलिए अभव्य जीव उसके आगे जा नहीं सकते। हाँ, ये भव्य कूट હોય છે, એનાથી આગળ જવાય જ નહીં એમનાથી। ये 8वीं भूमिना पहला હોય છે। तो 8वीं भूमि में फिर ये 12 कोठे में सम्यक दृष्टि होते हैं, व्यवहार से मानो तो भी और निश्चय से मानो तो भी। निश्चय पर व्यवहार सम्यक दृष्टि दो मत हैं, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी वहाँ तक जा सकते हैं, ऐसा आता है। कृपालुदेव ने भी एक जगह लिखा है कि समव शरणમાં જેટલા જાય છે એટલા બધા નિશ્ચય સમકીથી સમજવા નહીં। એ આ જીનેન્દ્ર દેવ છે એ સાચા છે, મારે એમનું જ અનુસરણ કરવું છે, એવા શ્રદ્ધાની જીવો પણ જઈ શકે એવું એક પત્રમાં
કૃપાળુદેવે લખ્યું છે. બધા જ ભવ્ય જાય એવું જરૂરી નથી. અમુક વિપુલાચલ ઉપર સમોસરણ હોય તો ત્યાં આજુબાજુના જેટલા હોય એટલા જાય. બધા સાઉથથી ત્યાં જાય એવું જરૂરી નથી. હા, ભવ્યજીવ બધા જઈ શકે અંદર. ભવ્યજીવમાં પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ, એ વખતે એમનો ભવ્યતા વેગળી, એ વખતે એમને એકદમ શ્રદ્ધા ના હોય, વ્યવહારથી શ્રદ્ધા ના હોય ભવ્ય પણ વ્યવહારથી શ્રદ્ધા ના હોય તો એ આગળ ના જઈ શકે. હા, વ્યવહારથી સામાન્ય શ્રદ્ધાન હોવો જોઈએ. અહીંયા ભવ્ય અભવ્ય सामान्य पात्रता बतावी है, थोड़ी पात्रता बताई, पर व्यवहार सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए वहाँ आगे जाने के लिए. ऐसा दो मत में उल्लेख आता है. एक में आता है कि निश्चय से सम्यक दृष्टि हो वही जा सकता है भव्य, और एक में कि भव्य हो पर ऐसे सामान्य सम्यक हो व्यवहार से तो वो जा सकता है. तो ऐसे समोसन. फिर 12 कोटे में पहले गणधर और मुनिराज, दूसरे में कल्पवासी देवियाँ, तीसरे में आरिकाएँ और श्राविकाएँ, जितनी भी आरिकाएँ और श्राविकाएँ, चौथे में ज्योतिषी देवी, फिर भवनवासी देवियाँ, फिर व्यंतरवासी देवियाँ. ऐसे मुझे एकदम ये क्रम श्योर नहीं है, ज्योतिषी भवनवासी और व्यंतर, पर उन तीनों में ऐसे होते हैं. फिर उसी प्रकार इसी क्रम में जो क्रम पूरा हुआ उसी क्रम में देव होते हैं, भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव, ज्योतिषी देव और कल्पवासी देव. फिर अंतिम दो में मनुष्य और तिर्यंश. ऐसे ये 12 कोठे होते हैं और 12 कोठे में इस प्रकार की रचना. फिर उसमें हर दिशा में अलग अलग से सीढ़ियाँ होती है 12 कोठों में आने के लिए. फिर उसके ऊपर सीढ़ियाँ, उसके आगे गंधकुटी होती है. गंधकुटी कुछ सीढ़ियों के, फिर एक आगे की कुछ सोपानों पे, सीढ़ियों पे अष्टमंगल द्रव्य और प्रातिहार्य. अष्टमंगल द्रव्य कौन से? हम जिनसे पूजा करते हैं ना, वही वो ये सब इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र ये सब रचना करता है. धूप घट और अष्टमंगल द्रव्य. तो जो प्रदक्षिणा करता है वहाँ जाके, तो जो प्रदक्षिणा करते हैं वो अष्टमंगल द्रव्य से जिनेन्द्र की आराधना करते हैं, धूप घट में धूप खेते हैं और फिर उसकी प्रदक्षिणा करके अपने स्थान पे आके बैठ जाते हैं. ये पहले सोपान पे रखा होता है. आगे के सोपानों पे थोड़ी अलग रचना होती है, सब वहाँ जा सकते नहीं है. फिर अंतिम सोपान पे ऊपर, हर एक सोपान पे यक्षेंद्र, देवों के जो इंद्र होते हैं ना, यक्षेंद्र, वो धर्मचक्र को लेके खड़े होते हैं. सिर पे धर्मचक्र को लेके खड़े होते हैं. फिर आगे अंत में गंधकुटी में ऊपर सिंहासन होता है और सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजित. ऐसे भगवान का चिंतन करना है. तो अब इतना चिंतन करने में ही आधा पौना घंटा 1 घंटा तो समोसरण का चिंतन करने में. फिर उस पे ऊपर भगवान का चिंतन. और भगवान का चिंतन क्या करना है? सिद्ध पूजा में अपन बोलते हैं, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियाँ. कैसे हैं भगवान? पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियाँ, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियाँ. ऐसा भगवान का चिंतन कि इतना वैभव है समोसरण में. असंख्यात लोग वहाँ आ सकते हैं पर उतना क्षेत्रफल नहीं होता है. फिर भी अतिशय ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे का बिना स्पर्श किए उस समोसरण में बैठ सकते हैं. जितने लोग आते हैं उतना उसका क्षेत्रफल नहीं होता है, उतना बड़ा होता नहीं है कि जितने उसमें लोग आते हैं. पर फिर भी अतिशय कैसा होता है कि 2 लोग, सभी लोग एक दूसरे को स्पर्श किए बिना वहाँ बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं. ये देवकृत है तो अतिशय, भगवान की विशुद्धता का अतिशय है. ये सब क्यों बनाया इंद्र ने? क्यों बनाया? अपने आप को इतना विशुद्ध कर लिया भगवान ने, दूसरा कोई कारण नहीं है. ये महिमा समंत भद्र स्वामी ने कहा, देवागम नभो यान चामरादि विभूतय. इन सब विभूतियों के कारण मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसा नहीं. ये तो कोई मायावी भी कर सकता है, कोई जादूगर भी कर सकता है,
मैं आपको नमस्कार इसलिए कर रहा हूं कि आपने अपने आत्मा को पूर्ण शुद्ध किया है, विशुद्ध किया, अनंत चतुष्टय को प्रकट किया है, बस मुझे वो चाहिए, मैं इसलिए आपको नमस्कार। इसलिए भगवान इतना वैभव होते हुए भी, इतना दिव्य वैभव होते हुए भी उससे क्या होते हैं? विरक्त होते हैं, अपने आप में स्थिर होते हैं, लीन होते हैं। ऐसे प्रभु का ध्यान करना, वो क्या है? रूपस्थ ध्यान, कि उसमें भगवान विराजित हैं, अनंत चतुष्टय मंडित हैं, और ऐसे फिर समूह शरण में विराजित भगवान का ध्यान करना। उससे ध्यान करते करते फिर अपने में जिन पद निज पद भेदभाव नहीं, लक्ष्य थवाने तेनो कया शास्त्र। तो बस ये सब शास्त्र इसीलिए कहें कि बस पहले जिनेश्वर का ध्यान और फिर निजेश्वर। साहिब जी कहते हैं जिनेश्वर 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 और निजेश्वर। तो ऐसे भगवान का ध्यान करना, वो क्या कहलाता है? रूपस्थ ध्यान। क्या कहलाता है? रूपस्थ ध्यान। तो भगवान परमात्मा ने ध्यावाथी परमात्मा थवाय छे। तो ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से, अब बहुत सारे शुष्क ज्ञानी होते हैं, वो ऐसा कहेंगे कि ये तो परद्रव्य है। जब सिद्धि आत्मा की करनी है तो ध्यान भी आत्मा का ही करो। पंच परमेष्ठी का ध्यान करके क्या करना है? तो पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों है? अभी बताया। समंत भद्र महाराज क्यों नमस्कार कर रहे हैं? पंच परमेष्ठी शुद्ध क्यों है? और कोई कारण नहीं है। उन्होंने त्याग लिया है, उन्होंने संयम लिया है, उन्होंने महाव्रत लिए हैं, इसलिए पूज्य हैं। आत्मस्थ हुए इसलिए पूज्य हैं। पांचों परमेष्ठी कहाँ लीन है? आत्मा में लीन है, इसलिए पूज्य हैं। इसलिए इनका ध्यान, और जो आत्मा में लीन है ऐसे का ध्यान करोगे तो कहाँ लीन होगे? आत्मा में ही लीन होगे। इसलिए ये व्यवहार से परद्रव्य हो सकता है, पर इसका ध्यान करने से अपने में ही जाते हैं। ऐसा कहा प्रवचन सार में। कहाँ कहा? हाँ बोलो साथे बधा। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परयय पणे, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय खरे। आर्ष वचन है कि जो अरिहंत भगवान को, या उपलक्ष्य से पांचों परमेष्ठी ले लेना, कि जो उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उनका चिंतन करता है, उनका ध्यान करता है, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है और वो अपने आत्मा में स्थित होता है। इसलिए पंच परमेष्ठी का ध्यान अपना ही ध्यान है, उनका ध्यान करना, धीमे 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 अपना ध्यान करना। तो ये क्या हुआ? कौन सा ध्यान हुआ? और भी प्रवचन सार में 8वीं गाथा अभी एक कल परसों ली थी। परिणमदि जैन दव्वम तत्कालम तम। आत्मा जिस समय जिसका विचार करता है वैसा, तो ऐसे शुद्ध आत्माओं का ध्यान करने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उनका ध्यान करना योग्य है, हर दृष्टि से योग्य है। कभी किसी की बात में आके ये नहीं सोचना कि वो परद्रव्य न, हम कैसे उनका ध्यान। वो हर दृष्टि से पूज्य हैं, हर दृष्टि से चिंतन के योग्य हैं, विचार के योग्य हैं, ध्यान के योग्य हैं, और उनका ध्यान निश्चय से हम तक ही पहुंचने वाला है। चलो आगे, रूपातीत। हाँ, वो भक्ति में सब, जब भक्ति प्रबुद्ध हो जाती है, ज्ञान सहित की भक्ति होती है, तो उसमें यही होता है। और भक्ति उसी को कहा है कि जो ज्ञान सहित हो। एनलाइटन्ड सरेंडर, साहिब जी ने जो परिभाषा दी, टोटल, यूनिलैटरल, अनकंडीशनल, इसके बिना भक्ति अधूरी है। एनलाइटन्ड सरेंडर, प्रबुद्ध सरेंडर। एनलाइटन्ड का अर्थ दो होते हैं, साहिब जी ने ही बताया उनके स्वाध्याय में, कि एक एनलाइटन मतलब जो सम्यक दृष्टि पुरुषों की भक्ति होती है, क्योंकि एनलाइटमेंट उनके ही हुआ है। एनलाइटन सोल को उन्होंने जाना है सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, तो उनकी भक्ति एनलाइटन। और दूसरा अर्थ ये लेते हैं कि प्रबुद्ध भक्ति, कि अपनी भक्ति में अंधता नहीं है, व्यक्ति लक्षी नहीं है, गुण लक्षी है वो भक्ति। तो गुरु तत्व देखना है, गुरु में व्यक्ति नहीं देखना है, तो वो प्रबुद्ध गुणों की भक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति की भक्ति, व्यक्ति राग, ब्लाइंड इमिटेशन इज नॉट द पाथ ऑफ साल्वेशन। साहिब जी कहते हैं हमेशा, ब्लाइंड इमिटेशन इज नॉट द पाथ ऑफ, अंधानुकरण मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो भक्ति में वो प्रबुद्धता,
ज्ञान सहित की भक्ति, और ऐसा ज्ञान तो पंच परमेष्ठि में वो भक्ति हमको लीन कर देती है, ऐसे ज्ञान सहित होती। इसलिए ये ध्यान कहे, ध्यान भक्ति और ज्ञान से कुछ अलग नहीं है। भगवती आराधना में ऐसा कहा कि जो हमने 5 प्रकार का स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए, निश्चय से वही धर्म ध्यान है। उन 5 प्रकारों में लीन रहना वही धर्म ध्यान है। और बाद में ध्यान इंटेंस अवस्था, वो एक अलग प्रकार का ध्यान जो आत्मानुभूति के लिए योग्य। बाकी 5 प्रकार के स्वाध्यायों में लीन रहो, वो भी धर्म ध्यान। और आत्मानुभूति करने के लिए अपने में स्थिर होना, वो आत्म ध्यान। तो ज्ञान और भक्ति से अलग नहीं है। भक्ति की जो नवधा भक्ति बनारसी दास जी ने बताई, उसमें फिर आगे क्या बताया, अंतिम में लघुता, समता, एकता, अद्वैत, द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, तो वहाँ भक्ति पूर्ण हो जाती है। श्रवण, कीर्तन, चिंतन, वंदन, सेवन, ध्यान, वहाँ भी ध्यान है। ध्यान के द्वारा ही लघुता, समता और एकता तीनों प्रकट हो जाते हैं, तो भक्ति भी ध्यान ही है। चलो, अंतिम रूपातीत ध्यान, अपना ये प्रकरण यहाँ पे पूरा हो जाएगा। रूपातीत ध्यान में क्या है कि मात्र गुणों का चिंतन, आत्मिक गुणों का चिंतन, वो कौन सा कहलाता है, रूपातीत संस्थान विचय धर्म ध्यान। आत्मिक गुणों का चिंतन कि भगवान में तो जो गुण व्यक्त हो गए वो मेरे में, मम व्यक्त्या गुणग्रामो शक्तितः परमेष्टिन, कि परमेष्टियों में वो गुण व्यक्त हैं और मेरे में शक्ति रूप है। तो उन गुणों का चिंतन, उसमें ये चिंतन करना है कि हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय खरे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र, मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा, बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। ये सब जो गाथाएं हैं जो हम सुबह की भक्ति में बोलते हैं, शुक्रवार की अध्यात्म गाथाएं, वो सब का चिंतन करना, वो सब क्या है, रूपातीत धर्म ध्यान। क्या है, रूपातीत। और ये रूपातीत को कथनचित किन्हीं आचार्यों ने इसको शुक्ल ध्यान में ले लिया, कि जो अंतिम रूपातीत धर्म ध्यान है वो एक प्रकार का शुक्ल ध्यान है, क्योंकि वो आत्मा को शुक्ल कर देता है। क्या करता है, शुक्ल अर्थात धवल, उज्ज्वल, सफ़ेद, दाग रहित, कलंक रहित, कलमश रहित, ऐसा कर देता है। इसलिए उसको अपेक्षा से कथनचित उसको शुक्ल ध्यान में, कि इसके बाद शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा धर्म ध्यान का प्रकरण चला। अब 4 प्रकार के क्या होते हैं, शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के, किस किस को याद है नाम? आत्माનું ધ્યાન, આત્મા અતિન્દ્રિય છે, ભગવાન પણ અતિન્દ્રિય છે, સિદ્ધ પરમેષ્ઠી પણ અતિન્દ્રિય છે। તો જે ઇન્દ્રિયોથી અતીત છે તે અતિન્દ્રિય સ્વરૂપ, એનું ध्यान करो, ये अतीन्द्रिय ध्यान। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के नाम किसको याद है? અઘરા છે નામ, સરળ નથી, પણ આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં આવી ગયા છે પહેલા। પૃથક્ત્વ, વિતર્ક, વિચાર। વિચારમાં અહીંયા વી દીર્ઘ લેવાનું, કેપિટલ। વિચાર એટલે આપણે જે ચિંતન કરીએ એ વિચાર નહીં, અહીંયા વિચારનો અર્થ પરિવર્તન એવું છે। વિચાર દીર્ઘઈ કરવાનો વાને, વિચાર। પૃથક્ત્વ, વિતર્ક, વિચાર। શું છે? પૃથક્ત્વ, વિતર્ક, વિચાર। પછી બીજું એકત્વ, વિતર્ક, અવિચાર। એકત્વ, વિતર્ક, અવિચાર। પછી ત્રીજું સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતી। શું નામ છે? સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતી। ને ચોથું વ્યુપરત ક્રિયા નિવૃત્તિ। વ્યુપરત ક્રિયા જેવા નામ અઘરા છે, કરવું પણ અઘરું છે। શુક્લ ધ્યાન સહેલું આ કાળમાં તો છે જ નહીં। આ કાળમાં આ ક્ષેત્રમાં, આ કાળમાં આ ક્ષેત્રમાં નથી, બીજે વિદેહ ક્ષેત્રમાં તો છે। આ કાળમાં આ ક્ષેત્રમાં આ ધ્યાન શુક્લ ધ્યાન। શુક્લ એટલે સંપૂર્ણ આત્માને શુક્લ કરી દે, કાં તો શુક્લ આત્માઓ જે થયા છે એ જે ધ્યાન કરે છે એ શુક્લ ધ્યાન, અથવા જે ધ્યાન આત્માને શુક્લ કરી દે છે,
કર્મ રહિત, કાલીમા રહિત, કલંક રહિત કરી નિરંજન કરી દે એને શું કહેવાય? શુક્લ. એટલે આનું નામ શુક્લ ધ્યાન આપ્યું છે. શુક્લ અંતઃકરણથી કરાયેલું ધ્યાન, એવી પણ એક પરિભાષા આવે છે. शुक्ल अंतःकरण से किया हुआ ध्यान, वो भी क्या कहलाता है? शुक्ल ध्यान. ये ध्यान श्रेणी में ही होता है. पहला ध्यान वो 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में होता है. कौन सा? पृथक्त्व, वितर्क, विचार. दूसरा ध्यान 11वें, 12वें गुण स्थान में होता है. एकत्व, वितर्क, अविचार. तीसरा ध्यान केवली के होता है 13वें गुण स्थान में, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, संयोग केवली. और चौथा ध्यान अयोग केवली के होता है 14वें गुण स्थान में. बहुत सूक्ष्म समय है, वो 5 स्वर का उच्चारण करो उतना ही, हम सोचते हैं उतने में केवली हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं वहाँ से. तो व्यूपरत क्रिया निवर्ती, वो 14वें गुण स्थान में ये ध्यान होता है. सबका समय बहुत सूक्ष्म होता है. अंतर्मुद, छोटा छोटा अंतर्मुद. हम श्वास आदि की क्रिया करते हैं उतने में उपशम श्रेणी चढ़ के मुनिराज उतर भी जाते हैं. इतना कम समय होता है. सेकंड तो बहुत ज़्यादा समय हो गए, सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा हो गए. अंतर्मूर्त मतलब वहाँ 47 मिनट, 46 मिनट, ऐसा नहीं समझना कि 45 मिनट तक ध्यान में बैठे. शुक्ल ध्यान, ये श्रेणी चढ़ना उतरना भी कुछ ऐसे समयों में हो जाता है. इतने छोटे छोटे अंतर्मूर्त होते हैं. लब्धिसार वगैरह ग्रंथों का जब अभ्यास करते हैं तब ये समझ में आता है कि वो बहुत छोटा है. प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल कितना है? 1-2 सेकंड साहेब जी कहते हैं. तो वो उनके अनुभव का विषय, पर सिद्धांत ग्रंथों में भी आया कि इतना ही काल है, उससे ज़्यादा होता नहीं. तो ये शुक्ल ध्यान. अब एकत्व वितर्क में क्या होता है? पहले वितर्क का अर्थ समझो. वितर्क का अर्थ क्या होता है? श्रुत. श्रुत. वितर्क का अर्थ क्या हुआ? श्रुत. और विचार का अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन. संक्रांति, संक्रांति बोलते हैं उसको. क्या? संक्रांति का अर्थ परिवर्तन. मकर संक्रांति बोलते हैं ना अपन. क्या परिवर्तन होता है उसमें? मकर संक्रांति पे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, ये उसका परिवर्तन होता है, इसलिए उसको संक्रांति बोलते हैं. तो इसमें किस किस की संक्रांति होती है? अर्थ की, व्यंजन की और योग की. व्यंजन अर्थात विचार, अर्थ अर्थात पदार्थ. अर्थ पदार्थ की, विचार की और योग मन वचन काय के योग. द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से पर्याय, पर्याय से द्रव्य, ऐसा ऐसा बदल के चिंतन करना. वो अर्थ की. फिर श्रुत, एक श्रुत वचन से दूसरे श्रुत वचन का, ये सब अबुद्धिपूर्वक चल रहा है. शुक्ल ध्यान बुद्धिपूर्वक नहीं है, वो तो आत्मानंद में लीन है, आत्मा के परम आनंद में लीन है. उनको ये नहीं पता है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, ये पीछे पूर्व प्रयोगों के कारण चल रहा है. तो 6 ढाले में कहा ना कि जब ये ध्यान चलता है तो उनके वो जो परम आनंद है उसको कैसा कहा है? अकथ. अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी. ये चौघाती कर्म, चौघाती विधि कानंदयो. तो वो जंगल, वो 4 घाती कर्म रूपी वन को ये इस अग्नि के द्वारा नष्ट कर देते. तो इस शुक्ल ध्यान का आनंद कैसा है? इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र किसी के भी कहा नहीं है. तो ऐसे वितर्क को बदलना, श्रुत को बदलना, वचन को बदलना, योग मनोयोग से काय योग से वचन योग, ऐसे योग का अर्थांतर उसको ऐसे बदल के करना, उसको क्या कहते हैं? पहले प्रकार का शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क विचार. विचार का अर्थ परिवर्तन. हम संक्षेप में इसलिए समझ रहे हैं इसको कि श्रद्धा करनी है हमको. ये हमारे अभी हम कर नहीं सकते, इसलिए जो कर सकते हैं उसका हमने बहुत विस्तार कर दिया, बहुत विस्तार से समझा कि जो हम कर सकते हैं हमारी साधना में उपयोगी है. दूसरा पृथक्त्व वितर्क अविचार. अब इसमें अविचार कहा इसलिए परिवर्तन नहीं है. एक श्रुत वचन का आलम्बन लिया उसी का, द्रव्य का आलम्बन लिया तो उसी का, योग का आलम्बन जिस योग का लिया तो उसी योग से ध्यान होगा. इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको अविचार कहा. एकत्व वितर्क, एकत्व मतलब एक में ही रहेगा, अविचार अर्थात परिवर्तन नहीं होगा, और वितर्क अर्थात शुद्ध. तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती. ये अरियंत भगवान के होता है, केवली के. यहाँ ध्यान कहा है
पर वास्तव में वो अवस्था जो है वो ध्यान का फल है। भगवान अरिहंत की अवस्था है वो क्या है, केवली की अवस्था, वो ध्यान का फल है। यहाँ पे उपचार से मानना शुक्ल ध्यान क्यों कहा, क्योंकि ध्यान का फल जो कर्म निर्जरा वहाँ भी देखी जा रही है। अनंत कर्मों की निर्जरा केवली अवस्था में भी दिख रही है। अघाती कर्म बचे न, तो वो धीमे धीमे वो प्रकृतियाँ खीर रही हैं। तो वो ध्यान का फल जो कर्म निर्जरा वो देखा है, इसलिए वहाँ कहते हैं कि वहाँ भी ध्यान है। बाकी वो उपचार से ध्यान है, भगवान तो अपने आत्मा में लीन है। वो ध्यान के फल को प्राप्त हो गए, वो घाती कर्म को नष्ट कर दिया है। तो 13वें-14वें में उपचार से शुक्ल ध्यान समझना। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती अर्थात कि वहाँ पे एक सूक्ष्म काय योग का अवलंबन होता है, बहुत ही सूक्ष्म काय योग का अवलंबन होता है, वो केवली गम में ही होता है। तो इसलिए उसको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपातिका। और व्युपरत क्रिया निवर्ती, वहाँ पे सभी योगों का निरोध, किसी भी योग का अवलंबन, कुछ भी अवलंबन नहीं है, सभी योगों का निरोध। और उसका काल कितना है, अ आ ई लू, ऐसे 14वां गुण स्थान। सूक्ष्म कायोग आ काय नहीं ने એ પણ અબુદ્ધિપૂર્વક છે, એ તો આત્માના, એટલે કીધું ને ઉપચારથી સમજવાનું કે એ ધ્યાન ત્યાં કયા છે, બાકી એ ધ્યાનનું ફળ છે મુખ્ય રૂપે, ત્યાં સમાધિમાં લીન છે। ને છેલ્લું શુક્લ ધ્યાન વ્યુપરત ક્રિયા નિવૃત્તિ, બધા યોગ નિરોધ કરવામાં આવે છે ને બસ આટલી વારમાં તો સિદ્ધ થઈ જાય। तो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बस तो ऐसे सिद्ध हो जाना है हमको भी, ऐसे ध्यान करते करते सिद्ध। इन सब ध्यान के प्रकार समझने का फल क्या है, पहले धर्म ध्यान करते करते सम्यक्त्व, सम्यक्त्व से श्रावक, श्रावक से मुनि अवस्था, शुद्धोपयोगी मुनि अवस्था को प्राप्त करें। और फिर इस काल में धर्म ध्यान करते हुए हम ऐसी अवस्था बना दें कि अगले भवों में हम धर्म ध्यान के साथ शुक्ल ध्यान करें। शुक्ल ध्यान करते करते एक एक शुक्ल ध्यान के द्वारा वो अवस्था प्राप्त करें, पहले घाती कर्म और फिर समस्त अघाती कर्मों को जला दें, राख कर दें, नष्ट कर दें। और फिर कौन सी अवस्था प्राप्त करें, पूर्व प्रयोगादि कारण नायोग थी, ऊर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो, सादि अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। ओम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वास्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की, सब संतन की जय। सद्गुरु जय, सद्गुरु जय। ध्यानનું પ્રકરણ પૂરું થયું છે, એની સાથે શક્તિતઃ તપ ભાવનાનું પ્રકરણ પૂરું થયું છે। હવે એક દિવસ આના પછી આગળની ભાવના ચાલુ કરતાં પહેલાં ધ્યાનની વિધિ, ધ્યાતા જીવ, એના લક્ષણ શું હોય છે, કેવી રીતે ધ્યાન કરવાની પાત્રતા સામાન્ય કેવી હોય છે, ધ્યાનનું સ્વરૂપ સમજી લીધું। હવે આપણે ધ્યાન કરવા માટે આપણામાં કેવી કેવી પાત્રતા, કેવા કેવા ગુણોનો વિકાસ જરૂરી છે, એ ખાલી સંક્ષિપ્તથી એક દિવસ સમજી એના પછી
સાધુ સમાધિ અને વૈયાવૃત્તિ ભાવના ઉપર આપણે જઈશું. ઓમ.